Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. आज हमारा लेक्चर नंबर 20 चैप्टर का नाम है ट्रायंगल्स, क्लास 9th, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, और टॉपिक जो आज का है, आज हमें क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। एक्सरसाइज है 6.2, सेकेंड एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर ट्रायंगल्स। इसका हमें तीसरा क्वेश्चन आज सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ने वाला हूँ, आप ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 3 says ABC is an isosceles triangle in which altitudes BE and CF are drawn to sides AC and AB respectively. Show that these altitudes are equal. तो हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC है। ABC is an isosceles triangle, और दो ऑल्टीट्यूड्स डाले गए हैं, दो परपेंडिकुलर्स डाले गए हैं। एक ऑल्टीट्यूड का नाम है BE और दूसरे ऑल्टीट्यूड का नाम है CF, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा गया है ऑल्टीट्यूड्स BE and CF। तो पहला ऑल्टीट्यूड BE है और दूसरा ऑल्टीट्यूड CF। कहाँ पे डाले गए हैं? आर ड्रॉन टू साइड्स AC। जो पहला ऑल्टीट्यूड BE है, इसे कहाँ पे डाला गया है? AC पर। तो जो पहला ऑल्टीट्यूड है, द फर्स्ट ऑल्टीट्यूड इज BE एंड इट हैज बीन ड्रॉन to side AC. BE, it is the first altitude drawn on AC to side AC. So here it is 90 degree here as well as 90 degree here. The second altitude drawn is CF, and this has been drawn on side AB. That means here it is 90 degree and also here it is 90 degree on both sides, 90 because this form a linear pair of angles and their sum is 180 degree. If one angle is 90 degree, another angle is 90 degree. If one angle is 90 degree, another angle is also, the adjacent angle is also 90 degree. So we have an isosceles triangle ABC. That means AB is equal to AC because it is talking about these two sides. ये इन्हीं दो sides की बात कर रहा है यहाँ पे, AC and AB. So AB and AC are equal. That means it is an isosceles triangle. And then we have two altitudes BE and CF. And these two altitudes have been drawn on AC and AB. The first altitude BE has been drawn on AC, and the second altitude CF has been drawn on AB. Now we have to show that these altitudes are equal. We have to prove that these two altitudes are equal. That is, BE is equal to CF. That needs proof. Okay, let's start the solution of this question. First, we will write what is given to us. Look at the question, look at the figure. Now tell me what is given. Yes, it's in question. ABC is an isosceles triangle. ABC is an isosceles triangle.
okay, in which AB is equal to AC, because it is talking about these two sides, in which AB equal to AC. Okay, then we have two altitudes. BE is drawn on AC and another altitude CF is drawn on AB. Altitudes BE, BE and CF are drawn, इनको डाला गया है on, drawn on. First altitude BE has been drawn on AC, so we are going to write down here AC, and the second altitude CF has been drawn on AB, so I am going to write here AB. I will read out again what is given to us. ABC is an isosceles triangle, okay, in which AB is equal to AC, AB is equal to AC. Then we have altitudes BE and CF. Altitudes BE and CF are drawn on AC and AB respectively. Okay, this was given. Now what we have to show, what we have to prove. We have to prove that these altitudes are equal, that is BE is equal to CF. We have to prove that BE is equal to CF. That means altitudes are equal. In bracket we can write down altitudes are equal. Altitudes are equal. Now we will give the proof. What we have to prove? We have to prove that these altitudes are equal, that is BE is equal to CF. BE is equal to CF. Now look, if we take the triangle ABE, we are going to take the triangle ABE. BE is one of the sides of this triangle, isn't it? If we take triangle ABE, this triangle BE, this altitude, first altitude BE is one of the sides of that triangle. Then we will take another triangle. हम एक और ट्रायंगल लेंगे. वो कौन सी ट्रायंगल होगी? ACF, यानी ये वाली ट्रायंगल हम लेंगे और उसमें हम CF की बात करेंगे. अगर हम ट्रायंगल ABE लेंगे उसमें हमें BE की बात होगी. अगर हम ट्रायंगल ACF लेंगे उसमें हमें CF मिल जाएगा. तो हम ये दोनों ट्रायंगल्स लेंगे. एक तो ट्रायंगल हम ABE लेंगे, ये वाली ट्रायंगल लेंगे, और दूसरी ट्रायंगल हम लेंगे ACF. तो ये वाली ट्रायंगल हम लेंगे. दोनों ट्रायंगल्स हम लेंगे और देखेंगे इनमें क्या कॉमन है. हम कोशिश करेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएं, ताकि फिर हमारी जो ट्रायंगल है ABE उसमें BE और फिर ट्रायंगल ACF का CF आपस में बराबर निकल जाएंगे बाय CP
सी टी। तो चलिए हम ये दोनों ट्रायंगल्स लेंगे और कोशिश करेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हों। तो लेट्स टेक दीज टू ट्रायंगल्स। इन ट्रायंगल ए बी ई and triangle AC F। चलिए मैं आपको फिर से दिखाता हूँ कौन सी ट्रायंगल लेनी है। एक तो ट्रायंगल लेना है ABE, ये वाला ट्रायंगल लेना है। आपको याद रखना है कौन से ट्रायंगल हम ले रहे हैं। उसके बाद हम दूसरी ट्रायंगल ले रहे हैं ACF, ये वाली ट्रायंगल। तो पहली ट्रायंगल में हमें BE मिल जाएगा और दूसरी ट्रायंगल जो हमने ली ACF, उसमें हमें CF मिल जाएगा। तो चलिए हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। उसके लिए हमें देखना होगा कि इन दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन क्या है। तो कौन सा क्राइटेरिया यहाँ पे बनेगा इन दोनों ट्रायंगल्स में। ठीक है, चलिए पहली ट्रायंगल देखते हैं ABE। ट्रायंगल ABE की तरफ देखते हैं क्योंकि हमने पहले ट्रायंगल ABE ही ली है। ट्रायंगल ABE में पहले हम ये वाला साइड अगर हम लेंगे, ये वाला एंगल, या ये वाला एंगल भी हम ले सकते हैं। दिस एंगल कैन ऑल्सो बी टेकन। चलिए इसी एंगल को हम पहले लेते हैं। ट्रायंगल ABE का ये एंगल हम लेते हैं। ट्रायंगल ABE का ये वाला एंगल लेते हैं। ठीक, तो इस एंगल का नाम क्या रहेगा? इस एंगल का नाम रहेगा एंगल AEB। ये जो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है, ये ऑल्टीट्यूड है ना, तो 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो हम लिखेंगे एंगल AEB, एंगल AEB, एंगल AEB। बताइए ये किसके बराबर है? दूसरी ट्रायंगल हमने ली है ट्रायंगल ACF, और इस ट्रायंगल में हमें यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है और इस एंगल का नाम है एंगल AFC, ये वाला एंगल। जो हमारी दूसरी ट्रायंगल है ACF, ये वाली ट्रायंगल, तो उसमें तो ये एंगल 90 डिग्री है, इसका नाम है एंगल AFC। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल AFC। ये आपस में बराबर होंगे। मैं फिर से आपको बताऊंगा। हम दो ट्रायंगल्स ले रहे हैं, ट्रायंगल ABE और ट्रायंगल ACF। और अगर हम ट्रायंगल ABE देखेंगे, ट्रायंगल ABE की तरफ देखेंगे, तो उसमें यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है और इस एंगल का नाम है एंगल AEB। फिर जो दूसरी ट्रायंगल हमने ली है ट्रायंगल ACF, यानी ये वाली ट्रायंगल, तो उसमें ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है ना। तो इस एंगल का नाम है एंगल AFC। तो दोनों आपस में बराबर है। क्यों? बोथ 90 डिग्री, ऑल्टीट्यूड की वजह से ये दोनों एंगल 90 डिग्री है, बोथ 90 डिग्री। ओके, उसके बाद हम देखेंगे, ये तो पहला एंगल हो गया बराबर, एक एंगल बराबर हो गया दोनों ट्रायंगल्स का। अब हम ये वाला एंगल लेंगे। देखिए ये जो एंगल A है, चलिए इसका नाम एंगल A ही रख सकते हैं क्योंकि पूरा एंगल है यहाँ पे एंगल A। अगर आप गौर से देखोगे कि एंगल A इन दोनों ट्रायंगल्स का कॉमन एंगल है, दोनों ट्रायंगल्स का ये कॉमन एंगल है। आप देख सकते हैं
ट्रायंगल ए बी ई, इसमें भी एंगल ए है। और अगर आप इस ट्रायंगल को देखोगे ट्रायंगल ए सी एफ, ये वाली ट्रायंगल अगर आप देखोगे इसमें भी एंगल ए है। पहली वाली ट्रायंगल में भी एंगल ए है और दूसरी वाली ट्रायंगल जो हम यहाँ से ले रहे हैं उसमें भी एंगल ए है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए। क्यों? क्योंकि ये कॉमन है, क्योंकि ये कॉमन है। चलिए, दो एंगल तो आपस में बराबर हो गए दोनों ट्रायंगल्स के। अब हम पहली ट्रायंगल की बात करेंगे, ट्रायंगल ए बी ई, यानी इस ट्रायंगल की बात करेंगे। और इसमें जो ए बी है, ए बी जो है, ए बी यहां पे मैं लिखता हूं ए बी इज इक्वल, आप गौर से देखिएगा, दूसरी ट्रायंगल हमने ली है ट्रायंगल ए सी एफ, उसमें जो ए सी है वो तो इसी के बराबर है, ए बी तो ए सी के बराबर है। ए बी जो है वो इस ट्रायंगल का हिस्सा है, साइड है, और ए सी जो है वो ट्रायंगल ए सी एफ का हिस्सा है, और वो हमें ऑलरेडी पता है वो बराबर है। ए बी इज इक्वल टू ए सी, दैट्स गिवन ए बी इज इक्वल टू ए सी। सो ए बी इज इक्वल टू ए सी, इट इज गिवन, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दो साइड्स इसके बराबर है। तो चलिए यहाँ पे एक क्राइटेरिया बनता है, एंगल एंगल साइड। ट्रायंगल्स की तरफ अगर देखेंगे, पहले ट्रायंगल ए बी ई की तरफ देखेंगे, ट्रायंगल ए बी ई, चलिए इस ट्रायंगल की तरफ देखते हैं। तो एंगल एंगल और फिर साइड। दूसरी ट्रायंगल की तरफ देखते हैं, ट्रायंगल ए सी एफ की तरफ देखते हैं। इसमें भी पहले ये एंगल इन्वॉल्व होता है जो कि 90 डिग्री है, फिर उसके बाद ये एंगल ए इन्वॉल्व होता है जो कि कॉमन एंगल है, फिर यहाँ पे साइड इन्वॉल्व होता है जो कि ए बी के साथ बराबर है। तो यहाँ पे क्राइटेरिया बनता है एंगल एंगल साइड। तो दोनों ट्रायंगल्स में ये क्राइटेरिया बन रहा है। कौन सा क्राइटेरिया बन रहा है? बाय एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल या कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम, ट्रायंगल ए बी ई is congruent to triangle ACF। दोनों ट्रायंगल्स अब कॉन्ग्रुएंट निकल चुकी है बाय एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। कौन कौन सी ट्रायंगल? ट्रायंगल ए बी ई, ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल ए सी एफ, ये वाली ट्रायंगल, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट निकल चुकी हैं। ठीक, अगर ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो जो बाकी जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, वो भी आपस में बराबर होंगी। तो चलिए हम देखते हैं, अगर हम ट्रायंगल ए बी ई देखेंगे उसमें बी ई है, ठीक है ना। फिर जो ट्रायंगल ए सी एफ है उसमें हम सी एफ लेंगे। तो पहली ट्रायंगल में हम बी ई लेंगे, दूसरी ट्रायंगल जो हमारी है उसमें हम सी एफ लेंगे, वो आपस में बराबर हो जाएंगे। सो बी ई इज इक्वल टू सी एफ। इज इक्वल टू सी एफ। वाई? सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो इस तरीके से हमें यही प्रूव करना था कि altitudes are equal. Altitude is drawn to two equal sides or equal. B is equal to CF. यही हमें प्रूव करना था that altitudes are equal. ये देखिए हमें प्रूव करना था altitudes are equal. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं hence altitudes drawn to
two equal sides of a triangle are also equal। तो यहाँ से हमें ये पॉइंट पता चल रहा है कि जो ऑल्टीट्यूड्स हमने बनाए दो इक्वल साइड्स पर, दो इक्वल साइड्स थे ए बी और ए सी, इस पे जो हमने ऑल्टीट्यूड्स डाले वो भी बराबर होते हैं। अगर दो साइड्स आपस में बराबर होंगे ट्रायंगल्स में तो उन पे जो हम ऑल्टीट्यूड्स डालेंगे, जैसे कि हमने डाला बी ई और सी एफ, ये बी ई और सी एफ भी आपस में बराबर होंगे। तो हमने वही लिखा, हेंस ऑल्टीट्यूड्स ड्रॉन टू टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल are also equal. This was the solution of question number 3 from the exercise 6.2. Hope you understand the solution of this question. If you still have any doubt, you can watch it 2-3 times. And still, if you have doubt, you can call me, you can go to the comment section. I hope you I will try my level best to clear your doubt. Thank you for watching my videos. Thank you very much.